consider dispersion. Dispersion is what? Dispersion is basically two types. It is absolute dispersion and relative dispersion. Actually, dispersion word means measurement of variation. Measurement of variation. Variation means deviation also. Means scatteredness. The values are scattered, means how much they are फैला हुआ है ना, कितना फैला हुआ है. This is also called second order central tendency. This dispersion is also called second order central tendency. Central tendency means, central tendency is what? Normally central tendency is mean median mode, but that is called first order D. First order central tendency means it is the mean median mode. We have done mean median mode in this sense कि when mean median mode we discuss, then we consider the first order central tendency. But the second order central tendency will be from that first order measurements, how much the values are scattered, means कितना फैला हुआ है. सेंटर वैल्यू से, सेंटर से कितना हटके है, कितना फैला हुआ है, तो कितना एवरेज में deviated है, that we will see. So in dispersion we have two types. Absolute means, the idea of absolute means this absolute dispersion. This idea absolute dispersion is no negative result. No negative result means final measurement will be not negative. No result, but here it will be no unit. Normally it is normally in percentage. So relative measurement is normally in percentage. Normally in percentage, no unit. And absolute measurement, there will be no negative value. But it has units. Units रहेगा. Units will be there. माने units का असर पड़ता है, लेकिन इसमें कोई units का सवाल नहीं है. Relative measurement is also called coefficient of dispersion. What is coefficient? It's a number which is pure number having no unit. So coefficient of dispersion is a measurement where we will be finding the relative or comparative values. माने जैसे दो वैल्यू है, जैसे इंडियन मार्केट और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में डिस्पर्शन कैसा है, इंडियन में ज़्यादा वेरिएशन है या ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा वेरिएशन है, तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं. लेकिन खाली इंडिया मार्केट देखेंगे तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट होगा. सो फर्स्ट द मेजरमेंट्स आर, absolute measurements are what? There are four absolute measurements. There are four absolute measurements of dispersion. One is range, which is denoted by capital R, range. Second one is quartile deviation. Quartile deviation. What is quartile deviation? Quartiles we have discussed last class, that 1/4 data. Quartile deviation, QD. Quartile deviation is short में QD. Number 3, mean deviation. These three are not the best measurement of central dispersion. Dispersion का best measurement नहीं है. तीनों का measurement improve हो रहा है. Range से better है QD, QD से better है MD. MD बने mean deviation. The best measurement is the fourth one, that is standard deviation. This is the best measurement of dispersion. This is standard deviation. Standard. What is the idea of standard? Standard deviation is the best measurement of dispersion in absolute sense. No negative result. Ultimately, we call it SD also. So in short, we have four types of dispersion. First is range. We write R. Second is QD. QD is quartile deviation. Third is mean deviation, MD. And fourth is standard deviation. Now what are the coefficient? Coefficient सबका है.
coefficient of range, then coefficient of QD, quartile deviation, then coefficient of short में coefficient of MD, and last का coefficient of HD नहीं बोलते, coefficient of variation, which is actually coefficient of HD है, that is denoted by CV. C माने coefficient, V माने variation. So in short, we have total 8 measurements in our discussion. First is the range, second is quartile deviation, third is coefficient of third is mean deviation, and fourth is standard deviation. So one by one. First, range कैसे होगा? What is range? Range is very simple measurement. Range means maximum value minus minimum value, highest value minus lowest value. तो सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे कम वैल्यू का डिफरेंस, बट इसमें यूनिट्स आता है, देयर विल बी यूनिट्स. दिस इज द फर्स्ट मेजरमेंट. नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा तो क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू. माने वो ऊपर में सबसे ज्यादा वैल्यू जो है उससे सबसे कम वैल्यू माइनस करो, डिवाइडेड बाय नीचे मैक्सिमम वैल्यू माइनस जैसे किए थे प्लस कर दिए, इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज करके करते तो 100 करेंगे. अगर इंटू 100 नहीं है तो दैट विल बी नॉट ए बिग इशू. अगर ऑप्शन में इंटू 100 है तो इंटू 100, और ऑप्शन में इंटू 100 नहीं है तो इंटू 100 नहीं है. दोनों है तो इंटू 100 इज बेटर. तो कोएफिशिएंट में इंटू 100 इज बेटर, बट इफ इट इज नॉट देयर देन देयर इज नो कंपल्शन कि 100 लेना ही पड़े. तो चलो क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज of following income in rupees. रुपया में है 30, 300, 315, 312, 298, 352, then 340. And then ओके, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? रेंज कैसे निकलेगा? रेंज होगा सबसे बड़ा नंबर इसमें 352 और सबसे छोटा 298. तो इसका आंसर 54. 54 क्योंकि ये माइनस करके जो आ रहा है 298 मिनिमम वैल्यू, 352 से अगर 298 माइनस करेंगे तो 54 आ रहा है, लेकिन ये रुपीज में होगा, इन रुपीज. इसका यूनिट हम लोग याद रखेंगे, रुपीज में होगा. दिस इज रेंज. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है मैक्सिमम वैल्यू 352 माइनस मिनिमम वैल्यू 298 divided by maximum value 352 plus minimum value into 100. That means the numerator तो 54, ऊपर में वो 54 है और नीचे है 298 plus 352 that is 650 into 100. तो into 100 अगर नहीं करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन में देखना होगा कि कैसे उन लोग किए. into 100 करना चाहिए, 650 है नीचे. So your answer will be 54 by 60, 54 divided by 650. तो ये point into 100, that is 8.30, 8.30, that is 8.3076. This is the, तो परसेंटेज लिखेंगे? नो, परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं, that is understandable, but no unit. इसमें इन रुपीज नहीं लिखेंगे. दिस इज नॉट इन यूनिट्स, इट हैज नो यूनिट. इसका मेजरमेंट होता है, तो वो रेंज का एब्सोल्यूट मेजरमेंट में खाली हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज माने रिलेटिव में हाईएस्ट
प्लस लोएस्ट इंटू मेजरमेंट करेंगे। अच्छा, अगर क्लास बाउंड्री दे दिए, क्लास में दे दिए 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, and the frequencies are 2, 5, 8, 3, 1. तो फाइंड रेंज अगर बोलेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करना होगा। वी राइट आर एक्स, आर माने रेंज, एक्स का, तो एक्स है क्या यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, कैसे देखोगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तो है 31, 39, नो 39.5 करना होगा, क्योंकि ये सब बाउंड्री में नहीं था। ये 0.5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब में 0.5 का एडजस्टमेंट का जरूरत है, तो ये 14.5 होगा। 15 से 19 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग लोएस्ट वैल्यू को देखेंगे 14.5, तो रेंज होगा हाईएस्ट वैल्यू 39.5 minus lowest value 14.5, which is 25. So range is not normally at the just 39 minus 15 नहीं करेंगे, 39.5 करेंगे और 14.5 माइनस कर देंगे, तो 25 होगा आंसर। So this is your answer. So that answer is your concept. Just one second. Now, please, sorry. Now, the point is, there is a very important issue. The issue is, रेंज का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होता है। Now, coming to the ideas. What is the idea? Range is a measurement of dispersion where we don't have any other thing but maximum और minimum का difference, और कोएफिशिएंट उसका ये है। अब चलो क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन माने QD, क्वार्टाइल डिविएशन, QD माने क्वार्टाइल डिविएशन। It is also called semi interquartile range. Semi interquartile range. This is very important word, that semi. Semi माने Q3 is upper quartile, Q1 is lower quartile by 2. So when I am discussing that QD, quartile deviation, we have to remember that it will be the difference of upper quartile minus lower quartile by 2. If I say quartile deviation के बदले interquartile range, instead of asking that measurement of interquartile range, then we don't say Q3 minus Q1 by 2, but Q3 minus Q1. So what is the difference between interquartile range and quartile deviation? Quartile deviation will be divided by 2, interquartile range by 2, semi. Or interquartile range is only Q3 minus Q1. Now coefficient of quartile deviation, if we want to measure, we have two formulas. First formula is Q3 upper quartile minus Q1 lower quartile by Q3 plus Q1 into 100. This is the formula we use mostly. Most of the cases we will use this formula, upper quartile minus lower quartile by upper quartile plus lower quartile into 100. But in some cases we don't have the scope to know what is the upper quartile and what is the lower quartile. That case, the second measurement is quartile deviation by median. We have to have the knowledge of median and we have to have the knowledge of quartile deviation. Then quartile deviation by median into 100. So that is the idea of this topic. So this topic is interquartile range and semi interquartile range, etc. तो जरा से क्वेश्चन दे दिए जो फाइंड QD of 1, 3, 5, 7, 9
12 and 15. So first thing, n mane number of data is 7. So quartile number 1 will be n plus 1 by 4th ascending value. तो द डेटा इफ यू आर सीइंग जो वैल्यू दिया हुआ है वो सब असेंडिंग में दिया हुआ है, क्योंकि इफ यू लुक एट द फिगर्स 1 से 3, 3 से 5 सब कम से ज़्यादा माने असेंडिंग में दिया हुआ है. सो n प्लस 1 माने 7 प्लस 1 बाई 4, तो सेकेंड वैल्यू. सो ऑल यू नीड, विच इज द सेकेंड वैल्यू यू नीड टू फाइंड आउट, सेकेंड वैल्यू इज 3. So in finding first quartile, you have to arrange the data in ascending order. Then n plus 1 by 4th value, n plus 1 is 7 plus 1 by 4th value, that is second value, is the first quartile. So first quartile is 3. Now the upper quartile or third quartile is 3 into n plus 1 by 4th value, ascending value of course. So ascending value 3 into n plus 1 by 4th is 3 into 7 plus 1, that is 8, by 4, that is 6th value. So in this set, in this series, 6th value is 12. So we have 3 is first quartile and 12 is upper quartile. So what is the quartile deviation? Quartile deviation will be Q3 minus Q1, that is 12 minus 3 by 2, because semi, so it is 4.5. So when you want to know quartile deviation, you need to know what is the lower quartile and what is the upper quartile, Q3 and Q1. If I ask you find the coefficient of quartile deviation, then it will be Q3 minus Q1, 12 minus 3 by 12 plus 3 into 100. That is 4.5 by 15, sorry, 9 by 15 into 100. So cancelling 3, this is 3, this is 5. So this will become 60. So quartile deviation का coefficient होगा 60%, no unit. So in this way we can find quartile deviation when you have the scope to find out Q1, Q2, Q3. But sometimes we say if coefficient of quartile deviation, this type of questions can be given, is equal to 25, median is equal to 40. Find quartile deviation value. So in this case you have to use coefficient of quartile deviation का कौन सा formula? The second formula. Coefficient of quartile deviation का formula QD by median into 100. So this is for 25, coefficient of quartile deviation is equal to QD, we need to find median is 40 into 100. So this will be 1000 by 100, that is 10. Quartile deviation is 10. So this is semi-interquartile range is 10. So this is the measurement of quartile deviation. Now we are going to discuss the second one. This topic is very simple topic and we will be getting questions surely from this. Now we will be having discussion of mean deviation. Mean deviation, there will be 3 types of mean deviation. There are 3 types. First is about mean. नॉर्मल क्वेश्चन में मीन से ही करते हैं, मीन का मीन डिविएशन, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार पहले निकालना होगा, फिर उसका मॉड, मॉड माने नेगेटिव वैल्यू हटा दो, ये मॉड साइन के बारे में डिस्कशन करेंगे. देन इज अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, दैट इज समेशन टोटल एक्स माइनस मीडियन, उसका मॉड, मॉड माने नेगेटिव वैल्यू हटा दो. एंड थर्ड about mode. About mode is summation x minus mode divided by n. So these formulas are very confusing. कौन सा लेना है? मीन बोलेगा तो ये लेंगे, मीडियन बोलेगा तो ये लेंगे, मोड बोलेगा तो ये लेंगे. तो कौन सा दिया हुआ है वो तुमको डिसाइड करना होगा क्वेश्चन पढ़ के. You have to read the question properly and find coefficient mean deviation. Now after mean deviation we have coefficient of mean deviation also. Coefficient of mean deviation is what? Coefficient of mean deviation is mean deviation MD by M into 100. What is M? M is mean or median or mode. How to decide कौन सा लेंगे? क्वेश्चन में बताएंगे कि mean deviation निकालो मीन का, तो नीचे mean deviation divided by mean करेंगे. अगर बोलेंगे मीन डिविएशन अबाउट मोड तो नीचे मोड करेंगे, अगर बोलेंगे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन तो नीचे मीडियन करेंगे. सो वी कैन टेक एन एग्जांपल. फाइंड
mean division about mean, they have mentioned it, and the values of x are 2, 7, 11, 12. So first task, you add these values. It is 32. This is 32. So mean will be 32 total divided by 4 because there are 4 values, 8. So now we'll be finding x minus mean, माने x bar. तो सबको वैल्यू से x bar माइनस करोगे तो 2 minus 8 is minus 6, 7 minus 8 is minus 1, 11 minus 8 is 3, and 12 minus 8 is 4. If you, sorry, 4. तो if you add ना, it will be 0. Yes, ये तो 0 होगा ही. क्यों? क्योंकि सम ऑफ डेविएशन तो 0 होता है. सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन तो 0 है. सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, दिस आइडिया इज ऑलवेज 0. दैट इज प्रूव्ड हियर कि सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज 0. बट वी नीड x माइनस एक्स बार का मॉडुलस. मॉड माने नेगेटिव वैल्यू हटा दो. इसमें 0 आया था क्योंकि हम लोग नेगेटिव लिए थे. अब ये जो साइन है मीन डेविएशन का फॉर्मूला में देखते कि x माइनस एक्स बार का जो डिफरेंस है उसका मॉड वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. माने ये माइनस हटा दो, 6, ये 1, ये 3, ये 4, तो टोटल आ रहा है 14. तो यहाँ पर आंसर होगा 14/4, नॉट 0/4. ये मेरे को चाहिए ही नहीं. हम तो ये कैलकुलेट ही नहीं करेंगे. तो क्या करेंगे? 2 minus 8 तो माइनस आएगा, माइनस को हटा देंगे. 7 minus 8 तो माइनस आएगा, माइनस को हटा देंगे. तो करके जो आ रहा है तो उससे तुम्हारा आंसर 3.5. सो दिस इज मीन डिविजन अबाउट मीन. नाउ इफ आई आस्क फाइंड, इसमें इसी क्वेश्चन में फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, इसी क्वेश्चन में अबाउट मीन, इन द सेम क्वेश्चन. In this question, I am asking find coefficient of mean division about mean. So coefficient of mean division about mean कैसे होगा? Coefficient of MD about x bar, that is MD जो निकला by mean into 100. क्यों? क्योंकि हम लोग mean का मेजरमेंट किए थे तो वो 3.5 आया था और mean आया था 8 into 100. So answer is 43.75. सो ये 43.75 है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, लेकिन मीन से निकालने के बाद. सो वी नीड टू नो एक मीन डेविएशन, पहले मीन का, उसके बाद मीन डिवाइड करो इनटू 100. सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन. दे विल मेंशन द क्वेश्चन क्लियरली. फाइंड, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन about mean for first 9 natural numbers. So there is a question, what is natural number? 9 natural numbers के लिए coefficient of mean division क्या होगा? About mean. Find coefficient of mean division about mean, x bar माने mean, for first 9 natural numbers. Okay. So first x means the numbers. Which are the number? Natural माने counting number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What are these? These are natural because counting number. When you add, this is 45. X bar is 45 total by number of data 9, 5. अब सब वैल्यू से x माइनस एक्स बार करोगे तो ये -4 आएगा, -3 आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. तो ये करके जो आया ये तो नहीं होगा, हम लोग को माइनस हटाना है. तो ये डायरेक्ट माइनस हटा के लिख सकते थे. 4, 3, 2, 1. 1 minus 5 -4 था, +4 लेंगे क्योंकि मीन डिविजन में एब्सोल्युटली पॉजिटिव लेना पड़ता है. 2 minus 5 is -3, हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे. 3 minus 5 is -2, पॉजिटिव लेंगे. ऐसे करके सब वैल्यूज का पॉजिटिव वैल्यू टोटल हो गया 20. सो व्हाट इज द मीन डिविजन नाउ? तो मीन डिविजन विल बी MD ऑफ मीन. MD ऑफ मीन इज x माइनस एक्स बार का टोटल बाई n, दैट इज 20/9. लीव इट. अब कोएफिशिएंट ऑफ MD बोला क्योंकि ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है, बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है. कोएफिशिएंट ऑफ MD अबाउट मीन, ये सेम क्वेश्चन बुक में है और उसका ऑप्शन भी थोड़ा अलग टाइप का है.
वो मीन डिवीजन जैसे निकाले बाय मीन इंटू 100। तो 20/9 बाय मीन इज 5 इंटू 100। सो ये कैसे कैलकुलेट होगा? 20/9 माने 20/45 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 और 5 इंटू हो जाएगा बाय 100। तो 5 से काटो, तो 20/9 इंटू 20, क्योंकि ये 5 से काट दिए तो ये 9 आया, यहाँ पर 20 आ गया, तो 400/9। ये बुक में है, तुम लोग का बुक में जो पुराना बुक है उसका 15.57 का क्वेश्चन नंबर 7 है, और जो नया बुक है 14.57 का 7 नंबर क्वेश्चन सेट बी का, सेट बी डिस्पर्शन का क्वेश्चन नंबर 7 हम कराए, 7 नंबर क्वेश्चन। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन बोलो या मीन डिवीजन बोलो, जो भी बोलो, अबाउट मीडियन, फाइंड मीन डिवीजन, क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा अबाउट मीडियन, फाइंड मीन डिवीजन अबाउट मीडियन फॉर डेटाज आर, अगर वैल्यू जो है वो बता दिए, वो है तुम्हारा 2, 15, 25 एंड 48। सो वी हैव 4 वैल्यूज जिसका मीन डिवीजन निकालना है अबाउट मीडियन। तो पहले एक लिखते हैं अरेंज करके, अरेंज करना बहुत जरूरी है, अरेंज होना चाहिए एक्स का वैल्यू 2 से, ये तो अरेंज हुआ है ऑलरेडी अरेंज्ड, अगर अरेंज नहीं होगा, असेंडिंग नहीं है तो करना होगा। तो मीडियन कौन है? 4 वैल्यू है, जो 4 + 1/2 वैल्यू, दैट इज 2.5 वैल्यू, दैट इज सेकेंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू बाई 2। इतना देखना नहीं था, समझाने के लिए हम ये दिखाए कि सेकेंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू है 15 और 25 जोड़ के 2 से डिवाइड, क्योंकि ये 4 वैल्यू है बीच में, तो यही होगा 20। सो मीडियन इज 20। सो व्हाट यू आर फाइंडिंग? 4 वैल्यू का मिडिल में 15 और 25 के मिडिल में जो आ रहा है वो है मीडियन, दैट इज 20। सो यू हैव गॉट द मीडियन। नाउ वी विल बी फाइंडिंग x माइनस मीडियन। मॉड से ले लो, 20 माइनस करो तो ये 18 होगा, माइनस नहीं लेंगे, ये 3 होगा, ये 5 होगा, और ये होगा तुम्हारा 28, 20 से माइनस किए, ऐड करने से 56। सो यू आर गेटिंग, वी आर एडिंग, जब ऐड करेंगे तो ये 18, 21, 26, सॉरी 54, 18, 21, 26, 54। तो मीन डिवीजन क्या होगा? मीन डिवीजन होगा 54/4, तो वो 13 पॉइंट, सॉरी डिवाइड करेंगे 54/4, तो 54/4 करने से तुम्हारा आंसर हो गया ये 13.5। सो दिस इज मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। अगर हम पूछेंगे एक सवाल कि इसमें अगर मीन से करते, अगर यही क्वेश्चन मीन से करते तो सेम आंसर आ सकता है, इट कैन बी सेम आंसर। 54/4 करके जैसे आया, अगर मीन से करते तो मीन क्या होगा? मीन होगा ये पूरा ऐड करो, ये 100 है, ये पूरा ऐड करने से ये हो गया 100, तो 100/4 25 है। तो अगर मीन से करते तो इसका मीन होगा 25, तो x माइनस मीन करके हमको करना होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 23, ये प्लस 10, माइनस होगा तो प्लस कर दिए, ये 0 और ये 23, तो ये 56। तो मीन डिवीजन अबाउट मीन जब होगा, अगर क्वेश्चन में ये बोले तो 56/4 दैट इज 14। सो वन थिंग यू हैव नोटिस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, मीन डिवीजन जब मीडियन का किए थे, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, उसका वैल्यू मीन डिवीजन अबाउट मीन से कम होगा ऑलवेज। मीन डिवीजन अबाउट मीडियन का वैल्यू जो 13.5 है, मीन डिवीजन अबाउट मीन जो 14 है उससे कम है। तो ये सवाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नजर में आया कि मीन डिवीजन अबाउट मीन इज ऑलवेज द लीस्ट अमंग द अदर मीन डिवीजन, माने मीन डिवीजन अबाउट मीन, मीन डिवीजन अबाउट मोड and mean division about median. So mean division about median is always the least, is always the least, इसका सबसे कम वैल्यू होता है। मीन डिवीजन अबाउट मीडियन इज ऑलवेज द लीस्ट, सबसे कम।
अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, मेरा क्लास का टाइमिंग खत्म हो जाएगा तो तुम लोग सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, तो हम आ रहे हैं इसमें। क्या बोलेंगे अब? फाइंड मीन डिवीजन अबाउट मोड कर लेते हैं। फाइंड एमडी मीन डिवीजन अबाउट मोड, अगर ऐसा बोलेंगे तो वैल्यू दे दो। कैसे कैसे वैल्यू है? वैल्यू है 1/5, देन 2/5, देन 2/5। इसका मीन डिवीजन अबाउट मोड करना है। अच्छा, और एक है 4/5। तो मोड कौन है जो सबसे ज्यादा बार आया है? तो वो 2/5 है। क्यों? 2/5 दो बार आया, तो x माइनस मोड करोगे, ये x था वैल्यूज, तो ये 2/5 लेस करने से माइनस होगा, लेकिन हम लोग प्लस साइन लेते हैं। ये 0, ये 0 और ये 2/5। तो जब ऐड करेंगे तो आ रहा है 3/5। तो मीन डिवीजन अबाउट मोड होगा, पहले 3/5 जो आया 0.6 है, तो मीन डिवीजन अबाउट मोड होगा x माइनस मोड का जो टोटल है उसको n से डिवाइड करना है। तो 0.6/4, दैट इज 0.6/4, क्योंकि 0.6 से 3/5, तो 3/5 को हम लोग 3/5 को हम लोग जब कैलकुलेट किए तो 0.15 आया, माने पॉइंट। सो दिस इज 0.15। सो दिस इज ऑल अबाउट मीन डिवीजन अबाउट मीन डिवीजन अबाउट मीडियन एंड मीन डिवीजन अबाउट मोड। सबसे बेस्ट मेजरमेंट मीन डिवीजन अबाउट मीन, बट सबसे कम रिजल्ट आता है मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। मीन डिवीजन अबाउट मोड इज नॉट गुड enough, but these measurements are not the best. Best measurement is standard deviation. Why? Because in this measurement we have the arithmetical, it has mathematical advantage, माने मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई होता है, तो इसका मैथमेटिकल एडवांटेज है जो दूसरा फॉर्मूला में नहीं है, माने मीन डिवीजन अबाउट मीन डिवीजन अबाउट मोड, ये सब में नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट। इसका फॉर्मूला देखेंगे एच डी का, स्टैंडर्ड डिविएशन इज एच डी डिनोटेड बाई सिग्मा। एच डी को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा ऐसे करके, सिग्मा का वैल्यू और एच डी का वैल्यू जो है वो है फॉर्मूला x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई n। इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डिविएशन अबाउट मीन, क्योंकि रूट है, मीन स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर डिविएशन अबाउट मीन। तो मीन का जो डिविएशन है उसका स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर डिविएशन अबाउट मीन is also called standard deviation. So definition of standard deviation, if you ask me, then this is the definition. Root mean square deviation about mean is called the standard deviation. Now this formula, this x minus x bar whole square by n is good formula, but it's not very good, because we can simplify this formula further. The better formula we popular is x square by n minus summation x by n whole square. Now one can ask me why this is better under root, because we don't need to find x bar. Sometimes this value x bar has some difficulty. Now here one thing, we don't need to find x bar directly, we can use this formula. In this case what happens, in this case sometime we have another measurement that is called variance, which is hd square. So what is hd square? That is called variance. So when you know variance, you can find hd by taking the root of variance. So sometime we have some idea that variance is hd square. Sometime we know variance, we need to find out hd, the root of variance is hd. तो hd और वेरिएंस का यही फर्क है कि वेरिएंस निकालने के लिए hd का स्क्वायर करना होगा। अब देखो, वो कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, तो कोएफिशिएंट इसका क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते, we don't say coefficient of hd, we say coefficient of variation cv, that is hd by mean into 100. This formula is very important for some comparative results. cv माने coefficient of variation, this is hd by mean into 100. तो जैसे एक क्वेश्चन है, x दे दिए,
3, 5, 13. Find SD and CV. CV माने coefficient of variation, both. So I can do two ways. पहले अगर इसको नॉर्मली करेंगे टोटल 21, तो x बार से करेंगे तो 21 टोटल है डिवाइडेड बाई 3 7. तो हम अगर नॉर्मली x माइनस एक्स बार करके करेंगे तो ये होगा -4, ये होगा -2 और ये होगा तुम्हारा 6. टोटल तो 0 होगा ही. हाँ, x माइनस एक्स बार का टोटल 0 होगा, लेकिन हमको इसका स्क्वायर करना है. एच डी के लिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये 16, ये 4, ये 36. So that will be your 56. So what is the SD? SD will be इसका रूट 56 का रूट माने x माइनस एक्स बार जो स्क्वायर है उसका रूट बाई m. रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, माने 56 का 3 बार करके डिवाइड कर दो. So 56/3 करने से जो आएगा, 56/3 करने से जो आएगा उसको रूट कर देंगे तो 4.32 आ रहा है. So that is the answer to this question. But I am not wanting to do this question in this way. If I think of other formula the same, तब हम कैसे करेंगे? अच्छा, इसका CV क्या होगा? SD by mean into 100. तो SD क्या आया था? 18.32, 4.32 डिवाइडेड बाई मीन क्या आया था? 7 into 100. मैंने हम लोग जब किए इसको तो पहले 56 निकाले, 56 को 3 से डिवाइड किए, जो आया उसका रूट दबा दिए, 4.32 डिवाइडेड बाई 7 into 100, 61 point, result is 61.72. This is the coefficient of variation. CV is SD by mean into 100. Now I would like to do this same problem in another formula. सेम प्रॉब्लम माने 3, 5, 13 को हम दूसरा मेथड से करना चाहते हैं, तो उसके लिए x बार निकालना नहीं होगा. x से स्क्वायर करो एंड ऐड कर दो 203 और इसको ऐड करने से 56. तो SD का फॉर्मूला सिग्मा जो लिखते हैं उसका फॉर्मूला है ऐसे. तो इसमें हम वो फॉर्मूला नहीं लगाए, कौन सा जो पहले लगाए थे. इसमें हम x बार कैलकुलेट नहीं करना है, तो कोई बड़ा फायदा होगा नहीं. कभी कभी बहुत बड़ा फायदा होता है, यहाँ पर तो है नहीं. Sometimes we get advantage of this formula. So this is your solve करके 203/3 कर लो. तो 203 को 3 से डिवाइड किए तो आया 67.66 माइनस तुम्हारा 56/3 को स्क्वायर कर लिए, तो स्क्वायर करके तुम्हारा आया 3. स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि ये 56/3 किए तो उसको स्क्वायर किए. एक मिनट, 56 से नहीं होगा, गलती की, सॉरी, बड़ा गलती हो गया. 21 है, सॉरी 21/3 का स्क्वायर, सॉरी ये बड़ा गलती हो गया. यहाँ पर 21 होगा. थैंक यू. दिस इज 49, ये 49 है. फिर 21/3 तो इससे होगा 60. वो हम 56 लिख दिए गलती से, पुराना वाला. तो SD आ रहा है तुम्हारा इसके हिसाब से 67.67 माइनस 67.67 माइनस वो होगा 49. तो उसका जो है रूट कर दो तो 4.32. एक ही आंसर है. सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन का स्टाइल जो किए. तो तुम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करो, हम फिर से लिंक वही सेम लिंक से ज्वाइन करो.